little bit idea you have that के basically if you see total this paper is 100 marks and passing marks I think इसी paper में सबसे कम है 50%, but we should not aim because ये तो professional exams हैं, so इसमें हमें pass नहीं होना. We should be knowing most of the topics जो भी question आते हैं. So total normally there are 6, you are to attempt 5. Okay, I hope all of you can hear me loud and clear. Yes, sir. Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Okay, Banjay, okay. So 6 questions, out of that 5 we have to attempt, 20 marks each and 50 marks is the passing percentage. First question, coding decoding, compulsory question रहता है ये. Now इसमें आपको weather reports, I don't know how many of you have been making the weather reports, आपके project में भी हैं to make a weather report, but यहाँ पे है कि it's not only making the sending the weather reports, how the weather report is. Of course nowadays we are not sending, but it has been coming previously before the satellite system came and all. So how this weather report was sent in a coded form. अगर coded form में हमारे पास आती है उसको decode कैसे करना है. So it's very simple. So we will study this, करेंगे. So it's sort of a numerical. So scoring very good. सारे groups ठीक हैं. 20 में से 20 marks. Is on wind, calculation of true and apparent wind. You all guys have been seeing that आपका जो anemometer है is giving you apparent wind. Wind triangle, basically this question is on wind triangle. It's basically a vector triangle like आपकी radar में रहती है. So यहाँ पे भी the true wind direction is given, find out the apparent wind direction and speed, or if you know the apparent wind direction उसकी true wind direction. This is a graphical method of calculating. So I don't know, any of you have calculated any time on the ship? Had a chance to calculate true wind direction from the apparent wind direction? Yes, sir. चलो, Yes, very sir. good. Okay, good. So हम इसको भी शुरू करेंगे. So you have a brief idea. So ये भी एक numerical है. Question ठीक हुआ तो basically इसके दो part होते हैं. So this wind triangle is approximately about 12-13 marks and इसका B part होता है theory of wind. उसमें भी छोटे छोटे कोई ना questions हैं जो हम पढ़ेंगे. So these two questions become a very scoring questions. Numerical type है, थोड़ी सी हमें मेहनत practice speed बढ़ानी है and we can easily do these two questions to get at least 40 नहीं तो 35 marks तो हम ले ही सकते हैं इनमें से. Question number 3, shipborne meteorological instruments. I think most of you have used all the instruments. So इनमें से एक instrument आएगा barometer, barograph, hygrometer, psychrometer, anemometer. तो ये 3-4-5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं. शिप पे ज़्यादा हमारे पास मेट्रोलॉजी का इक्विपमेंट तो होता ही नहीं है. सो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव यूज्ड. अब थोड़ा सा उसकी थ्योरी स्केच एंड इफ़ यू हैव यूज्ड जो यू नो बस बुक में भी है, हम पढ़ेंगे उसको, स्केच की प्रैक्टिस करेंगे. तो ये भी एक क्वेश्चन है ही है जिसमें से कि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो one question is on this, then one question on cloud visibility, climatology. Now clouds, formation of clouds, types of clouds. Visibility means fog, how the fog forms and how many types of fog is there. ये आ जाता है. climatology में आपके various monsoons, anabatic, katabatic, land breeze, sea swell. So few very basic things are there जो आपको आनी भी चाहिए, professionally भी हमें पता होना चाहिए. What is sea swell? What is the difference? What are these wind patterns? Interesting है. I won't say it is now science, it is like a general knowledge. Question 6, weather system, sea swell, weather forecasting. इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा. So 6 क्वेश्चन में से 5 हमने करने हैं. कोडिंग डिकोडिंग वेरी इजी, कंपलसरी भी है. विंड ट्रायंगल हो गया 2, शिपबॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स 3, एक आपका क्लाउड विजिबिलिटी, क्लाउड पे हो गया, फॉग पे हो गया. So 4 क्वेश्चन तो यही हो गए. एक क्वेश्चन आप वैसे भी कहीं ना कहीं से ये है कि हमने इसको सीखना है, देखना है. बिकॉज मेट्रोलॉजी इज समथिंग विच इज़ वेरी यूजफुल शिप्स यूज. आज नहीं है, स्लोली जैसे आप सीनियर बनते जाओगे, चीफ ऑफिसर, मास्टर बनोगे, तो वेदर इज ओनली थ्रेट जिसको आप नॉट प्रिडिक्ट. बट हमें अगर इसकी नॉलेज है देन वी कैन डेफिनेटली सेव द शिप, सेव एनीबडी एंड बी कंफर्टेबल. बैड वेदर में वी विल नॉट पुट द शिप इन बैड वेदर. ठीक है. सो दिस इज द बेसिकली योर फॉर्मेट. 6 क्वेश्चंस 5 करने हैं एंड लेट्स सी. आज का हमारा टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, एटमॉस्फेयर, वेरी बेसिक थिंग. एटमॉस्फेयर होता क्या है? एनीबडी, आपके मन में क्या आता है? व्हेन वी टॉक ऑफ एटमॉस्फेयर व्हाट कम्स टू योर माइंड कि अरे एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है? हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट? वी ऑल नो, वी ऑल एक्सपीरियंस इट डेली, बट हाउ डू वी एक्सप्रेस इट इन
simple terms. Current condition of the sky. Anything else? Anybody else? Layer that surrounds the earth. जो भी आपके मन में आता है, सी समटाइम क्या होता है कि हमें पता है, एज आई बीन एक्सप्लेनिंग टू यू, यू नो द थिंग्स, बट यार उसको जब हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करने आते हैं तब हम अटक जाते हैं कि आई नो इट बट नहीं बन रहे हमारे पास. एयर सराउंडिंग अस, what is surrounding us? Atmosphere is what? It is something like what we feel the air, isn't it? अगर आप ओशियन में हो, suppose just imagine a fish which is surrounded by water all over, isn't it? Similarly, we are surrounded in an ocean of air. That's what basically is your atmosphere, isn't it? तो ज़्यादा इसमें हाई टेक नहीं सोचना, एकदम सिंपल. मेट्रोलॉजी को जितना सिंपल उसमें अंडरस्टैंड करोगे उतनी आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी. Today we will understand the atmosphere, its composition and its physical properties. If you see meteorology, what is meteorology? It's basically a scientific study of the atmosphere. There is envelope of gases surrounding the earth, nothing else. Now weather refers to जो आप कह रहे थे कि now what do you mean by weather? It's the elements that we see daily, such as temperature, rain, wind, atmospheric pressure, etc. These can change every hour and day by day. That's what we call weather. Something other than weather, what we use the term climate. Climate is more general pattern of weather established by analyzing on an annual basis the daily weather conditions at a particular point. Weather को पढ़ना means yes, the scientific study of weather, what we call the atmosphere. Now atmosphere surrounds the whole surface of earth, both land and sea, just as life in depth of ocean is subjected to pressure owing to the weight of sea above. All of us, whether on land or sea, are living in the bottom of an ocean of air, are subjected to a pressure exerted by the weight of air above us. अब इस प्रेशर को देखें, when we go to the pressure, प्रेशर के जब हम टॉपिक पे आएंगे, then we will see कि अरे प्रेशर क्या चीज़ है. It looks very simple. Here, what the atmosphere consists of, इसके constituents क्या हैं? Envelope of air or the mixture of gases, what we call, that surrounds the earth. Now the composition of the lower atmosphere, what we call troposphere, very simple. Nitrogen, maximum is nitrogen, 78%. Now you see God has given in atmosphere, सब बंदों के लिए कुछ ना कुछ दिया इस atmosphere में. Used by bacteria in soil to make nitrates. Oxygen 21%, used by humans, animals for respiration. Argon 0.84, carbon dioxide 0.03, used by green plants to make food. That's why we all talk about here, trees लगाओ, plants लगाओ, trees लगाओ. Why? They clean the air. How they clean the air? Because they use this carbon dioxide for their food. Other items 0.01%, which include these gases, helium, hydrogen, ozone, krypton, neon, xenon. These things plus water vapor, dust particles and pollution. That's all what we think, what we see every day, isn't it? That is what is your atmosphere. Short form में nitrogen 78, oxygen 21, water vapor, rare gases about 1%. ये आपका basically atmosphere इसकी composition. Structure and composition क्या है? Atmosphere can be divided into distinct layers defined by variation of the air temperature with increase in height. Following are the various layers of atmosphere in the ascending height. इसमें भी of course atmosphere keeps on going infinity तक है. Amount of water vapor vary depending upon the temperature of air. Water vapor is continuously added or removed from the atmosphere. Evaporation हो रही है कि precipitation हो रही है, तो ये cycle चलता ही रहता है. Different layers of atmosphere are known by different names. सबसे पहले आ जाता है हमारा troposphere. Basically हम इसी troposphere का ही weather ज़्यादा पढ़ेंगे. Troposphere is extending 8 to 16 kilometers above the sea level. Troposphere next 50 kilometers above sea level. And mesosphere 80 kilometers and ionosphere over 200 kilometers above the sea level. So these are the various or boundaries for your various spheres: troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere. We are not more concerned, we are only concerned with this sphere, which is the nearest to the surface of Earth, and it is about 8 kilometers above the poles and 16 kilometers above the equator. Nearly all the weather changes that occur and nearly all water vapor of the atmosphere is in this troposphere. So हमने भी surface navigation करनी है, हमने ऊपर planes तो उड़ाने नहीं. What we are interested is the on the surface. So यही troposphere up to tropopause जिसे हम कहते हैं, उस weather में क्या changes होती हैं, how the temperature behaves, how the pressure changes, how temperature changes. This is what we are going to study.
Now this zone of separation between troposphere and stratosphere is called tropopause. It's like a gap. दोनों कोई sharp line तो है नहीं कि हाँ भी अच्छा इस line के बाद आपका stratosphere शुरू हो गया. So troposphere and stratosphere के बीच में जो demarcation है that we call tropopause. So this is of interest to mariner as it is the upper limit of the troposphere within which the weather changes occur. अब आपने देख लिया कि troposphere है क्या चीज़. It is basically a layer of atmosphere which is extending about 8 kilometers above poles and 16 kilometers above equator, and all the weather changes are taking place in this, and the separation between these two, what we call is a tropopause. So a little bit about stratosphere. It extends from tropopause up to 50 kilometers above Earth's surface, that is up to the stratopause. So वहाँ पे भी ये demarcation जो है, जो थोड़ा सा एरिया है, उसने उसको tropopause की तरह stratopause कह दिया. The lower stratosphere, the air temperature is constant with increasing height, but in the middle and upper parts of stratosphere, it increases with increasing height. Now this is देखिए different phenomena है. जब आप troposphere पढ़ेंगे तो we will see how the temperature is changing. Now we have seen, we have been studying, we have been told by everyone कि as the height increases the temperature decreases, और हमने feel भी किया. प्लेन से हम जब माउंटेन्स की तरफ जाना शुरू करते हैं तो वी सी हाँ यार एकदम एटमॉस्फेयर हवा ठंडी हो जाती है. बट ये आपके सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही है. स्ट्रेटोस्फियर एंड अपर एरियाज में ये जो टेम्परेचर चेंजेस हैं ये डिफरेंट हैं. इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट, समटाइम भी कुछ अलग अलग चेंजेस हैं. सो दिस इज ड्यू टू बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन दिस लेयर. मेसोस्फियर extends from stratopause up to about 80 kilometer above surface of Earth, that's up to the mesopause. So वहाँ पे भी ये जितनी भी डिमार्केशन है उनको स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, ट्रोपोपॉज, सारी दीज आर लाइक डिमार्केशंस. कोई शार्प लाइन नहीं है वहाँ पे. In the mesosphere, the air temperature decreases rapidly with increasing height. Stratosphere, this layer too is not of any significance to us because हाइट पे जाने वाले नहीं. इंसोलेशन अभी आप देखें, इंसोलेशन क्या है बेसिकली. नाउ अगर आप कहते हैं कि माइथोलॉजी में जाइए तो हम सूर्य को देवता क्यों कहते हैं, isn't it? We all call सूर्य देवता. इसका रीज़न एक ही है कि सन इज़ द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस. आपके जितने भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी ये आपकी विंड सर्कुलेशन है, जितने भी आपके इवन व्हाट यू कॉल स्टॉर्म्स और करंट्स, सारा का सारा इट इज़ ड्यू टू द सोलर एक्टिविटी. तो इसलिए जिन्होंने भी इसको सोच के इसका बड़ा ठीक नाम रखा है कि सूर्य देवता जी इन्हीं के करके ये सारा सिस्टम जो हमारा चलता है, सीजन्स सब कुछ इन्हीं के बेस पे. Insolation basically क्या? Insolation is the solar radiation that reaches the Earth's surface. How? Scattering by absorption. So whatever methods or ways of traveling of these rays are there, so all these things are known as insolation. So it includes light, heat, ultraviolet, infrared rays, everything what we call insolation. Basically it is how the energy reaches us, how these light waves or electromagnetic waves from the sun reaches the Earth is all called insolation. Insolation affects temperature. More the insolation, the higher the temperature. So incoming जो rays हैं, it is what, जितनी वो ज़्यादा आएंगी उतनी, अभी आप देख लीजिए समर शुरू होगी, डे टाइम इज प्रेटी हॉट, विंटर्स में थोड़ी कम हो जाती है. तो दिस इज हाउ बेसिकली यू लुक लाइक. इनकी जो कंसंट्रेशन है इट डिपेंड्स अगेन ऑन द सरफेस एरिया. इक्वेटर के पास सन की रेज जो है, इंसोलेशन जो है वो ग्रेटर रहती है बिकॉज इट इज फॉलिंग एब्सोल्युटली स्ट्रेट वे एंड स्मॉलर एरिया पे. whereas as we go up, so all these rays they fall on more and more surface area increase हो जाता है, तो इनकी इंटेंसिटी भी उसी तरह से कम हो जाती है. तो larger area receives lesser concentration of insolation per meter and vertical rays, whereas here they reach more higher great concentration. Equator out here all the year around you find this equator is all the time hot. So this is due to the sun rays reaching and how they get spread over smaller and larger area. Insolation comes in form of very short waves length, and this form of energy passes through the without heating. Insolation passes through Earth's atmosphere without heating it. So अगर आपको कोई पूछे now the next question comes कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये गर्म कैसे होता है? How do this atmosphere gets heated up? अभी हमने ये तो देख लिया कि इंसोलेशन होती है, sun rays are there, atmosphere gets heated up. Anybody? जो रेज अंदर आती हैं वो अंदर ही ट्रैप होके रह जाती है. आपका कहना है कि ये रेज ट्रैप होके रह जाती हैं तब हमारी अर्थ गर्म होती है. चलो, एनीबडी एल्स? सिंपल, जो भी आपके मन में आता है कि हाँ यार ठीक है हम एटमॉस्फेयर अर्थ पे रह रहे हैं,
अभी आपने देखा भी है, गर्मी है, सर्दी है, ये अर्थ गर्म कैसे होती है, ठंडी कैसे होती है। ठीक है, सन से तो रेज आ रही हैं। आई वॉन्ट वेस्ट मच ऑफ अ टाइम, सो इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सन से जो बच्चे रेज आती हैं, द वट एवर दिस रेज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म जो आती हैं, दे आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। एंड दी शॉर्ट वेवलेंथ की जो वेव्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी है दैट दे पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम विदाउट हीटिंग द मीडियम। ये रेज जो आ रही हैं, ये आपकी हवा को गर्म नहीं करती, तो अर्थ पिघल जाती है। दे पास थ्रू दिस मीडियम विदाउट हीटिंग द मीडियम, एंड व्हेन दे स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस क्या, लैंड भी है, सी भी है। जब अर्थ सरफेस पे, लैंड पे ये स्ट्राइक करेंगी, नेचुरली आपका जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। पानी में भी, वाटर सरफेस पे भी जब ये हिट करेंगी, देन दे विल स्टार्ट हीटिंग द वाटर आल्सो। अब हमने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर हम लैंड मास को अगर गर्म करते हैं, हाउ द लैंड मास गेट्स हीटेड अप थ्रू कंडक्शन, एंड हाउ वाटर गेट्स हीटेड अप थ्रू कन्वेक्शन। अलग अलग प्रोसेस है। कंडक्शन क्या है कि ऊपर की लेयर गर्म हुई और हीट को थोड़ी नीचे पास करती है, तो अर्थ जो है ज़्यादा डेप्थ तक गर्म नहीं होती, वो 5-10 सेंटीमीटर ही गर्म होगी, दैट्स ऑल। एंड पार्ट ऑफ दिस रेज व्हेन दे स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, जब इन्होंने लैंड को गर्म किया, अब ये जो लैंड जो गर्म हुई है, इसमें से ये जो हवा जो गर्म होके निकलेगी, ये आपकी हवा को गर्म करती है, बिकॉज इसकी वेवलेंथ भी अब चेंज हो जाती है। नाउ दिस बिकम्स अ लॉन्गर वेवलेंथ। एयर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ वाटर, दैट स्टार्ट्स गेटिंग वार्म्ड अप, एंड ये आपकी एटमॉस्फेयर पे एयर को जो है गर्म करना शुरू कर देती है। इनकमिंग वाली नहीं करती। इनकमिंग की रेडिएशन की जो है वो वेवलेंथ दूसरी है, इसकी वेवलेंथ जो है बड़ी है। तो ये how the atmosphere is heated, all the heat reaching the earth's surface arrives in the form of radiation from the sun, and all the loss of heat is in the form of re-radiation to space। अब आपने जो कहा था कि ये जो ट्रैप हो जाती है कि यस, अब इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ये जो ट्रैपिंग है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी, दैट व्हाट वी सी व्हेन वी सी दिस व्हाट वी कॉल द ग्लास हाउस इफेक्ट, जिसे कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं, जिससे जो इसकी वेवलेंथ चेंज हुई, दीज वेव्स कैनॉट पास आउट ऑफ दिस। इवन इन सम प्लेसेस द पीपल मेक ग्लास हाउसेज, एंड अंदर तो एनर्जी आ जाती है बट वो बाहर नहीं जा सकती, इसके लिए आपके ग्लास हाउसेज जो है गर्म हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ द सन emits energy in the form of electromagnetic waves of small wavelength. Energy of such small wavelength has a property of passing through the transparent media without heating the media. Energy is absorbed by atmosphere from the radiation of the sun. All the solar radiation is absorbed by land and surface layers of sea. It's the land and sea surface. The atmosphere is heated by simple conduction of heat from the heated earth surface. इसके लिए आपने देखा है, जैसे जैसे सन की रेडिएशन पड़ेगी, अर्थ गर्म होती जाएगी, थोड़ी सी नीचे भी गर्म होती है, इसके इन कॉन्टैक्ट जो हवा है वो भी गर्म होगी, एंड वी स्टार्ट फीलिंग द हीट। जैसे जैसे इनकमिंग रेडिएशन और आती जाएगी और अर्थ को गर्म करेगी, अर्थ उसकी री रेडिएशन भी करेगी, एंड वी स्टार्ट सीइंग दैट डे टाइम में अर्थ आपकी कितनी गर्म है और हवा भी गर्म होती है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग द हीट। फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। What are the factors? The primary cause of temperature difference over Earth's surface is variation in the sun's altitude. That we know, जिसे आप seasons कहते हैं। यार अब समर आ गई, अभी sun is on the northerly declination. Winters northern hemisphere में sun is on the southerly declination, तो northern hemisphere जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ और भी reasons हैं। In fact, distribution of temperature everywhere over the Earth is controlled by several factors such as distribution of land, sea, cloud cover throughout the year, temperature and extent of ocean currents. These are the factors which control the temperature of atmosphere. अब आपकी आगे क्या रही, variation. Atmospheric temperature reaches its maximum at about 1400 hours and its minimum at about half an hour after the sunrise. ये भी हमने पढ़ा है, but इसका reason क्या है? This systematic change in atmospheric temperature during an average 24-hour period is termed as diurnal variation of temperature. ये होता क्यों है? Anybody? ये तो हमने सबने पढ़ा है यार, 2 o'clock और 1400 is the maximum temperature, so we all plan our outing also, and minimum is early morning. ठीक है, सुबह आप उठते हो, जो जल्दी उठते देखोगे सुबह सुबह ठंडा होता है मौसम। आइडिया वेरी सिंपल, कहता है द रेट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम सनराइज अंटिल द सन इज ऑन योर मेरिडियन। जब सनराइज हुआ टिल इट इज राइजिंग, इट इज कमिंग ऑन योर मेरिडियन, अर्थ इज कंटिन्यूसली रिसीविंग दिस वेव्स, दिस इनकमिंग जो आपकी इंसोलेशन है, दैट कीप्स कमिंग एंड इट कीप्स हीटिंग द अर्थ, एंड द अर्थ गिव्स आउट हीट बाय रेडिएशन, एंड दिस लॉस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज द सरफेस टेम्परेचर कीप्स राइजिंग।
जैसे सनराइज हुआ, आपकी इंसुलेशन कम, इनकमिंग रेज जो है वो आनी शुरू हुई, उन्होंने अर्थ को गर्म किया, अर्थ ने री रेडिएशन की, एटमोसफियर गर्म होता जाएगा टिल द सन इज ऑन योर मेरिडियन। अब जब वो मेरिडियन से पास कर जाएगा व्हेन इट इज सेटिंग, तब क्या होगा? अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर, नाउ द डेज आर हॉटर बिकॉज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मोर देन द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसके लिए आपके दिन गर्म है। अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर मस्ट बी रीच समटाइम आफ्टरनून। क्यों? कि जब आपका सन आपके मेरिडियन से सेटिंग की तरफ गया, तब इनकमिंग रेडिएशन जो है आस्ते आस्ते कम होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे इनकमिंग कम होगी तो आउटगोइंग रेडिएशन भी कम हो जाएगी। सो बिफोर दिस डिक्लाइन स्टार्ट्स, सो देयर इज अ लाइक अ बैलेंस कि भाई अभी तक तो इंक्रीज हो रहा था, आफ्टर जस्ट पासिंग द मेरिडियन अराउंड 2 o'clock यू फाइंड नाउ द इनकमिंग रेडिएशन इज रिड्यूस्ड एंड आउटगोइंग इज आल्सो रिड्यूस्ड। अब टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जब यह टेम्परेचर इंक्रीज रुक जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, उस टेम्परेचर को हम नोट करते हैं एंड इट इज अबाउट 1400 आवर्स। हम इसे कह देते हैं कि द मैक्सिमम हैज रीच्ड। सिमिलरली आफ्टर सनसेट द लॉस ऑफ हीट बाय अर्थ सरफेस इज लेस बिकॉज इनकमिंग भी कम है। अब इनकमिंग कम है तो आउटगोइंग भी कम होगी एंड अर्थ का जो टेम्परेचर है इट स्टार्ट्स फॉलिंग। Both by day and night, the Earth loses more energy in the form of long wave radiation than it gains back by radiation from the atmosphere. So after the sunset हो गया, incoming radiation नहीं है, Earth गर्म भी नहीं होगी तो re-radiation भी नहीं होगी, temperature starts falling till the next time sun जो है वापस नीचे से घूम के आपको it is again rising. When it is again come to the rising, फिर वो insolation, incoming radiation आ जाएगी शुरू। इनकमिंग रेडिएशन आई, इट विल स्टार्ट हीटिंग अप। सो बिफोर दिस चेंज टेक्स प्लेस, कि अभी तो टेम्परेचर गिर रहा था, इट वाज फॉलिंग सनराइज और लिटिल बिट बिफोर सनराइज। जैसे ही सनराइज हुआ फिर उसने उसको गर्म करना शुरू करना है एंड देन दिस फॉल, देयर इज अ स्टॉप इन फॉल एंड बिफोर द राइज स्टार्ट्स। उस टाइम को मेट्रोलॉजिस्ट नोट करते हैं एंड वी कॉल इट दैट इज द मिनिमम एंड दैट्स नॉर्मली अबाउट हाफ एन आवर बिफोर द सनराइज। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, नाउ दिस सिस्टमैटिक चेंज जो है इसे कहते हैं डायरनल। द मीनिंग ऑफ डायरनल मीन्स वन हाई एंड वन लो। तो टेम्परेचर का जो सिस्टमैटिक चेंज है दैट इज डायरनल, मीन्स दिन में एक ही हाई होगा और एक ही लो होगा। तो अगर कोई आपको पूछे कि यार डायरनल का क्या मीनिंग, डायरनल का मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग मीन्स डायरनल वन हाई एंड वन लो इन 24 आवर्स। एंड डायरनल टेम्परेचर रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। अभी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो और मीडिया पढ़ते हो, सो दे राइट देयर दैट टुडेज मिनिमम इज सो मच, मैक्सिमम इज। ये जो डायरनल रेंज है इसे कहते हैं डायरनल रेंज। डायरनल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। इट इज क्वाइट हाई ऑन द लैंड। लैंड का टेम्परेचर सुबह हो सकता है मे बी 15-16 डिग्री हो, आफ्टरनून में हो सकता है इट कैन बी अराउंड 30 डिग्रीज, whereas on sea this diurnal range is very small, not even 1 or 2. Why? बस पानी जो है वो अर्थ की तरह गर्म नहीं होता, लैंड की तरह गर्म नहीं होता। वो जो ऊपर से गर्म होगा, कन्वेक्शन करंट स्टार्ट, जब तक वो पूरा नीचे का पानी गर्म नहीं होगा, दिस कन्वेक्शन करंट्स जो हैं पूरे घूमते रहेंगे। सी टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नॉट लाइक लैंड। लैंड में इमीजिएटली लैंड गर्म होनी शुरू हो जाएगी और इमीजिएटली ठंडी हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। Now, diurnal range of air temperature over land is large, whereas over sea it is very small, even 1 degree. Why? Land being solid has low value of specific heat and so heats up quickly. And sea being liquid has a higher value of specific heat and so heats up and cools slowly. Heat received by land is retained only by top layer as the land is poor conductor of heat. Maybe 5 या 10 सेंटीमीटर तक उससे नीचे आप देखिए नीचे की ज़मीन ठंडी होती है। दैट्स वाई यू पीपल मेक ऑल्सो, क्या कहते हैं उसे, बेसमेंट। आजकल लोगों ने बेसमेंट बनानी शुरू कर दी कि यार वो ठंडी रहती है गर्मियों। एंड हीट रिसीव्ड बाय द सी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज मास ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। इसके लिए उसका टेम्परेचर जो है इतना राइज एंड फॉल नहीं करेगा। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, बट इन केस ऑफ लैंड देयर इज नो इवेपोरेशन, सी देयर इज इवेपोरेशन, तो उससे भी कूलिंग रहती है। तो ये आपके फ्यू रीजंस हैं व्हाई देयर इज अ डायरनल रेंज इज मोर ऑन। कई बार छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपके पास नाउ यू हैव अंडरस्टूड, यू गॉट इनफ मटेरियल टू राइट। अब नेक्स्ट आ गया वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद हाइट। ये हमने समझ लिया एटमॉस्फेयर क्या है, अब ये टेम्परेचर भी देख लिया कि हाँ ये अर्थ गर्म कैसे होती है। अब इसकी वेरिएशन कैसे है विद द हाइट। The lower atmosphere or the troposphere gets its heat indirectly from the sun
heating of the earth's surface and of the layer of the air in contact with it. So the temperature of troposphere is highest at the bottom, closest to the land surface, and normally falls steadily as the height increases. So जैसे जैसे height increase होगी, ये जो air आपकी in contact with surface of earth है, वो भी जो है ठंडी होनी शुरू हो जाती है. So sometimes the local influences cause the temperature of air to increase with height instead of falling, but this is a very exceptional case. उस वक्त इसे हम कहते हैं temperature inversion, or it can remain constant with height. This is not a normal case, these are the exceptional cases. So air is then said to be in a isothermal layer. So isothermal layer, when the rising air temperature remains same, it's not falling, and if it is increasing, then it's called temperature inversion. Otherwise the normal phenomena in troposphere is as the air rises its temperature falls. Next is your adiabatic changes. अभी इसको भी थोड़ा समझना important है कि यार adiabatic changes क्या है. Adiabatic changes is basically a name to the process. It's a process. The temperature, pressure and volume of a substance. Process for a change in the temperature, pressure and volume of a substance when no heat is allowed to reach or leave it while it is being compressed or expanded. ये adiabatic process है कि अगर हम कोई भी external source हवा को गर्म करने या ठंडा करने को नहीं लगाते. एक सिंपल, इफ यू हैव सीन अ साइकिल पंप, अगर आप उसको विगोरसली पंप करते हो तो यू सी दैट उसकी पाइप गर्म हो जाती है. व्हेन द एयर इज कंप्रेस्ड, इवन कंप्रेसर आपने देखे होंगे, शिप पे चलते हैं कंप्रेसर चलता है, व्हेन द एयर बीइंग कंप्रेस्ड बाय द कंप्रेसर वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर गोज अप. सिमिलरली व्हेन दिस एयर एक्सपेंड्स देन इट बिकम्स ठंडी, देन इट कूल डाउन. ये भी हम देखेंगे ऐसे ये प्रोसेस क्यों होता है. सो कूलिंग का इफेक्ट भी आप देख लीजिए. CO2 सिलेंडर, CO2 एक्सटिंग्विशर आपने यूज़ किया होगा कभी, उसके अंदर कंप्रेस्ड गैस होती है. जैसे ही वो गैस आप वॉल खोलते हो, जैसे ही वो गैस बाहर आती है, इट इज अंडर हाई प्रेशर. अब जैसे ही वो बाहर आएगी उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है. जब उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, हाँ जी, हाँ उसमें भी देखिए आपने चार्ज किया होंगे, अगर आप उसको चार्ज करते हो तो आप देखिए पाइप गर्म हो जाती है, गैस गर्म हो जाती है, एयर गर्म हो जाती है. वाई? बिकॉज हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, हम उसको कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा. जब वो एक्सपैंड होती है उसको और एरिया मिलता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है. CO2 एक्सटिंग्विशर को आप देखना, जैसे उसमें से निकलती है उसकी पाइप एकदम आइस जमनी शुरू हो जाती है. इट बिकम सो कूल. ये जो प्रोसेसेस हैं, लाइक एयर, लाइक अदर गैसेज, इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टन नेचुरल लॉस. So when the air is compressed, its temperature rises, and when it is allowed to expand, its temperature drops. As long as these changes occur without any heat passing to or reaching the air from an outside source, changes in temperature are said to be adiabatic heating or cooling. हम उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, हमने कोई टॉर्च तो लगाई नहीं थी. जस्ट बाय कंप्रेशन या एक्सपेंशन से ये जो कूलिंग एंड हीटिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस. एटमॉस्फेयर में भी यही एडियाबैटिक प्रोसेसेस चलते हैं कि जैसे जैसे आपकी एयर जो लैंड के नज़दीक है, ज़मीन के नज़दीक है, वो काफ़ी थिक होती है, डेंस होती है. जैसे ही वो राइज करना शुरू करेगी, उसको और सरफेस एरिया मिलता है, वो एक्सपैंड होनी शुरू होती है, then it starts getting cooled. So that is the reason when the air rises, it becomes cool, and when it is actually what you call this comes down, when the air is actually coming down, it is sinking down below, फिर उसका टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है. राइजिंग एयर का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है. एडियाबैटिक चेंजेस, ये प्रोसेस अगर आपने सिंपल समझ लिया, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा है, दीज आर द एडियाबैटिक प्रोसेसेस. अब इसका लैप्स रेट भी है. एडियाबैटिक लैप्स रेट मीन्स कि हाउ दिस टेम्परेचर ऑफ अ एयर चेंजेस. प्रोसेस इज सेड टू बी एडियाबैटिक व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर, that is heat does not enter or leave the system. Change of temperature of air with increase in height is due to increase or decrease in its volume without any transfer of heat from or to the surrounding. As we know, the temperature increases when the volume decreases. And by law or of physics, when a parcel of air is made to rise, its volume increases in accordance with the rarer air at that height. Therefore, when the volume of this air increases, the temperature decreases. So ये आपकी adiabatic changes है. Expansion of air has caused it to cool. No exchange of heat has taken place. So adiabatic changes आपने अच्छी तरह से समझ लेनी है. Now, what is adiabatic lapse rate? It is the rate at which the parcel of air is cooled with increase in height. अब इसमें भी अलग अलग varieties of air parcel हैं. कोई parcel of air हो सकता है उसमें moisture बहुत ज़्यादा हो, saturated हो,
किसी में थोड़ा कम हो तो वो भी फ़र्क पड़ेगा. So it is usually expressed in degree Celsius per kilometer. It is called environmental lapse rate. So it is approximately 6.5 degree per kilometer. अगर ये आपकी नॉर्मल एयर जो है वो राइज करेगी तो उसका टेम्परेचर 6.5 डिग्री पर किलोमीटर हाइट के हिसाब से डिक्रीज करेगा. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल लैप्स रेट. तो ये तो इतना नहीं है. इफ यू सी दिस DALR, आपको इस पे क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज DALR एंड SALR. DALR इज any parcel of air that is not fully saturated is called dry air. ये जो ड्राई एयर है इसके अंदर जो मॉइस्चर है 100% नहीं है, मे बी 99% हो तभी इसे हम ड्राई एयर कहेंगे. 100% हो गया then it is called fully saturated. So when a parcel of dry air is observed that the temperature of dry parcel of air which is made to rise, उसका temperature falls at a steady rate of 10 degree per centigrade for every kilometer of ascent. So DLR is normally 10 degree per kilometer, whereas SALR means saturated parcel है fully 100%, उसके अंदर water vapor है, humidity 100% है, it is called saturated air. अब ये parcel जब made to rise उसका temperature normally falls at a rate of 5 degree. अब ये 10 degree and 5 degree क्यों है, इसके भी reasons. As the saturated air rises, its temperature decreases and capacity to hold water vapor also decreases. Similarly, the excess moisture condenses into water droplets. So this condensation causes release of latent heat of vaporization that warms up the parcel of air. So that's why if you see, therefore the temperature falls only by 5 degree because a lot of latent heat is released when this condensation takes place or the precipitation takes place. So more the water vapor in the air, more the condensation, more the latent heat is released. In other words, more water vapor, less is the decrease in temperature and less is the SALR. ये तो आपका हो गया एडियाबैटिक चेंजेस क्या है, SALR क्या है, DLR क्या है. अब हमने देख लिया वाटर वेपर. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारा क्या है. Whenever a water molecule leaves the surface and diffuses into surrounding gas, it is said to have evaporated. Evaporation is very simple. Now, three main stages of hydrological cycle are evaporation, condensation and precipitation. Right? उसी हिसाब से आपका ये साइकिल जो है चलता रहता है. वाटर इवेपोरेट्स, देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड फिर बारिश वापस बैक टू द वाटर. इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वेपर. इवेपोरेशन टेम्परेरी पाथवे, water moves from liquid state back into the water cycle. And oceans, sea lakes, rivers provide nearly 90% of the moisture in the atmosphere via evaporation. इसीलिए हमारे बोलते हैं seas, oceans are very important. So when water changes from solid state to vapor state, vice versa, process is called sublimation. चलो ये तो important नहीं है. Water vapor and humidity. अब हमने humidity कार्गो में भी पढ़ा था थोड़ा सा कि वहाँ पे भी यार कैसे उसका sweat and ventilation होता है. तो same thing is, I think you are little bit well aware कि water vapor humidity क्या है. Humidity में basically what we have is the many terms of expressing the humidity means water vapor are there. So हमारे इंटरेस्ट के लिए relative humidity वो भी हमने देख लिया. Relative humidity is quantity of water vapor by maximum possible at that temperature into 100, we call it relative humidity. 50% है, 70%, 80%. So ये हमने कर लिया. So I will not touch on this that relative humidity क्या होती है. ये आपने स्टडी किया. ड्यू पॉइंट भी हमने पढ़ लिया था. It is same. So when the air becomes fully saturated, we call it as reached the dew point. क्यों कि as the air is cooled, जैसे जैसे हम हवा को ठंडा करेंगे उसकी जो relative humidity है starts increasing. तो जब 100% हो गई, जिस टेम्परेचर पे 100% हुई, we call it a dew point. तो आपके पास आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर का तो हमने देख लिया बिहेवियर. प्रेशर का बिहेवियर क्या, ये थोड़ा सा अलग है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर also changes during the day time. Now atmospheric pressure is basically the force exerted per unit area. तो ये तो वेरी बेसिक हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि यार प्रेशर क्या होता है. इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द एयर. तो उसके यूनिट्स क्या क्या हैं, मिलीबार, बार. आजकल उसको हेक्टोपास्कल में आता है. 1 हेक्टोपास्कल इज 1 मिलीबार एंड 1000 मिलीबार इज 1 बार, जिसे 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं. नॉर्मली एवरेज एटमॉस्फेयर इज 1013 मिलीबार. Now lapse rate of atmospheric pressure means rate of change of atmospheric pressure. टेम्परेचर का तो हमने देख लिया क्योंकि इस रेट से चेंज होता है as it falls. अब यहाँ पे जो प्रेशर जो है
वो भी जो है इट ऑल्सो डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेस। इसका एवरेज लैप्स रेट जो है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद हाइट इज अबाउट 115 मिलीबार पर किलोमीटर in the lower levels of atmosphere. At higher levels lapse rate is little higher, but चलो 5 किलोमीटर तक हम इंटरेस्टेड हैं। जो चेंज है इट इज, अभी आपने देखा होगा जब हम बैरोमीटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम यही चीज़ लगाते हैं, isn't it? 1 मिलीबार फॉर एवरी 10 मीटर। तो सेम चीज़ है, इट इज़ 115 मिलीबार। सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपका जो प्रेशर है वो 115 मिलीबार गिर जाएगा। ये दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इवन calculate the height above the sea level also. Owing to many changes, अब इसकी जो प्रेशर चेंजेस हैं, अभी टेम्परेचर के तो हमने देख लिया था कि 1 हाई 1 लो इन 24 आवर्स। इन केस ऑफ प्रेशर इट इज 2 हाइज एंड 2 लोस आवर्स। ये इसका रीज़न अभी तक क्यों होता है ये ट्वाइस, ये अभी तक नहीं किसी को पता। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, बट nobody knows कि why this 2 highs and 2 lows in a day. So इस 2 highs and 2 lows, इसके लिए इसे सेमीडायरनल कहते हैं। Semi-diurnal in case of pressure it is semi-diurnal change, in case of temperature it is diurnal. So owing to many causes which are not fully understood by man, atmospheric pressure changes with the time of day. It has been observed it is maximum at 10 and 20 and minimum at 4 and 6, not 6, at 1600 hours. It happens twice a day, it's called semi-diurnal. The difference between this maximum and minimum is again the range of semi-diurnal atmosphere. जैसे हमारी वहाँ पे diurnal range थी, यहाँ पे range। अब इसके साथ आपका आ जाता है बैरोमीटर। तो हम पढ़ेंगे बैरोमीटर, तो नहीं आज पढ़ेंगे, बैरोमेट्रिक टेंडेंसी। क्या प्रेशर हमने देख लिया, रेट ऑफ चेंज उसका देख लिया, एंड बैरोमेट्रिक टेंडेंसीज, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टाइम। ये हम काफ़ी जगह यूज़ करेंगे, बैरोमीटर के टाइम में भी, कोडिंग डिकोडिंग में भी। यार व्हाट इज बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, tomorrow you are going to come on the watch, so you will say यार what is the tendency of the barometer, is it falling, rising, or this means what is the rate of change as compared to 3 hours before. What is the difference between atmospheric pressure at the time of observation and atmospheric pressure 3 hours earlier? Is basically your barometric tendency. तो उससे काफ़ी आपको information मिलती है कि यार what type of weather you are going to face. Pressure is rising, good weather. Pressure is falling, bad weather. So barometric tendency gives forecaster a good idea of rate of change of pressure, which is useful for predicting movement of pressure systems. इसके साथ आपके आ जाते हैं आइसोबार्स के। अब हमने प्रेशर तो देख लिया कि हर जगह पे अलग अलग प्रेशर है। तो मेट्रोलॉजिस्ट अगर एक वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, सीइंग जहाँ जहाँ प्रेशर है, नाउ यू हैव लॉट ऑफ लाइंस ऑन द मैप्स। ये जो लाइंस हैं, कहीं जहाँ सेम प्रेशर है, अगर उसको मैं एक लाइन से ज्वाइन कर दूँ, so we start calling it iso means same, similar, bar means pressure. So an isobar is a line drawn on the weather map joining all places having same pressure at the time when the weather map was drawn. Atmospheric pressure is dynamic. It may change frequently. So its values only hold good for that particular time. यानी कि अभी हमने प्रेशर लिया तो शाम तक वही रहेगा। For standardization, isobars are drawn at 4 millibar interval and the pressure denoted by isobar is divisible by 4. अब ये क्यों है? ये कस्टमरी है, एक स्टैंडर्ड बन गया हुआ है कि भाई आइसोबार जो हैं 4 मिलीबार के इंटरवल पे ड्रॉ करने हैं अपने मैप पे। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको वेदर रिपोर्ट देते हैं, वेदर मैप आता है, उसमें ये आपको आइसोबार जो है 4 मिलीबार के इंटरवल पे दिखेंगे। अब आइसोबार से हमें एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइसोबार्स फार अपार्ट मीन्स वीक विंड्स, ये दूर है, दैट मीन्स प्रेशर चेंज, प्रेशर टेंडेंसी है, द रेट ऑफ चेंज इज, हो सकता है इसमें 100 नॉटिकल माइल का डिफरेंस। तो जहाज 100 नॉटिकल माइल हो सकता है शी में टेक 8 आवर्स, 8 घंटे में ये 4 मिलीबार गिरेगा प्रेशर। सो देयर विल बी वीक विंड्स। अपोजिट इफ दिस आइसोबार्स आर क्लोज बाय, एकदम नज़दीक है, सो दिस डिस्टेंस मे बी 50 किलोमीटर्स और 50 नॉटिकल माइल्स और 20 नॉटिकल माइल्स, दैट मीन्स विद इन 1 आवर 4 मिलीबार प्रेशर गिरना इज अ ट्रिमेंडस इंडिकेशन ऑफ द बैड वेदर। तो क्या सिंपल चीज़ है, बाय लुकिंग एट द मैप, वेदर मैप, आई कैन मेक आउट कि व्हाट टाइप ऑफ वेदर आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। उसके साथ आप क्या आ जाते हैं आइसेलोबार्स। सो व्हाट इज आइसेलोबार? आइसेलोबार्स आर बेसिकली लाइंस ड्रॉन ऑन द चार्ट थ्रू प्लेसेस हैविंग सेम टेंडेंसी, मींस सेम रेट ऑफ चेंज। A line on a weather map connecting places having equal changes in atmospheric pressure within a given period of time is known as isobars. तो हमें तो इसकी ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट मेट्रोलॉजिस्ट किनारा के लिए, उनके लिए ये आइसेलोबार्स आर वेरी यूज। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मैप भी ऐसा दिखता है।
ये आपने जो पढ़ा है इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ड्यू पॉइंट, व्हाट इज डायगोनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, छोटे छोटे नोट्स लिखने के लिए। तो आपके पास ये सारा अगर आपने समझ लिया, थोड़ा सा इसे पढ़िए समझिए, एक क्वेश्चन आपका आराम से आंसर हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज आइसोबार, व्हाट इज आइसेलोबार्स, सिस्टम क्या है, उसके लैप्स रेट क्या है, एडियाबैटिक लैप्स रेट्स क्या हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, थोड़ा अगर समझ लिया लैंग्वेज के लिए आपके पास ये है, आई विल सेंड यू ऑन योर मेल। तो इसको आपने पढ़ना है, समझना है, फिर स्लोली हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब इतना अगर आपने समझ लिया, वेरी बेसिक है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी चेंजेस कैसे होती हैं, हाउ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंटायर मेट्रोलॉजी। ये स्टॉर्म सिस्टम क्या होता है, ये कैसे बनता है, क्या क्या होता है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन सो फार, कहते हैं ऑल अंडरस्टूड। आइसोबार से समझा दीजिए। आइसोबार इज अ रेट ऑफ चेंज। आइसोबार्स क्या हैं, आइसोबार्स तो हैं कि लाइंस ड्रॉन विद द सेम प्रेशर की। अब ये मैंने 1016 की ड्रॉ की है, अभी जहाँ प्रेशर 1016 है, जहाँ ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी। एंड आइसोबार इज अ बेसिकली सेम, इट्स अ वेदर मैप पे है, अगर जैसे हमने ड्रॉ किया मीन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज सपोज हो सकता है बैरोमीटर इज फॉलिंग बाय 2 मिलीबार, तो जहाँ जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज 2 मिलीबार, उस लाइंस उस प्लेसेस को मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ये आपकी आइसोबार कहते हैं। ओके, तो मतलब जो ये लाइन बनी हुई है सर, इस पे कंटिन्यूअसली इसी उस पे चेंज हो रहा है ना? यस, अब ये देखिए अमेरिका का मैप बना, मीन्स अमेरिका के इस एरिया में द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज एट द सेम रेट। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि जैसे प्रेशर वगैरह माइन, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज और बैरोमेट्रिक टेंडेंसी इज 2 मिलीबार एवरी 3 आवर्स। अभी उसने इसको रेड कर दिया कि प्रेशर इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 2 मिलीबार 3 आवर्स नॉप्टिक आवर्स, मीन्स यहाँ पे भी इसी रेट से गिर रहा है, यहाँ पे भी इसी रेट से, यहाँ पे हो थोड़े अलग रेट से, यहाँ पे हो सकता है प्रेशर राइज कर रहा हो, ये देखो प्लस साइन दिखा रहा है, फिर रेड है यहाँ पे अगेन माइनस, यहाँ पे प्रेशर टेंडेंसी इज बैरोमीटर और द प्रेशर इज फॉलिंग स्टडीली और अनस्टडीली। तो ये सारी लाइंस उनको आइडिया लग जाता है कि भाई यहाँ प्रेशर इसी रेट से हो सकता है, यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम डेवलप हो रहा, लो प्रेशर हाई प्रेशर। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ आइसोबार्स। अंडरस्टूड बच्चे? यस सर, अंडरस्टूड। या यस। ठीक है, सो आज के लिए दिस इज इनफ फॉर यू। तो इसको पढ़िए, वीकेंड में जितना हमने किया उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिए, सो दैट यू रिमेन अप टू डेट, ताकि हम आगे आगे पढ़ते जाएं। ये नहीं आगे पढ़ते जाएं पीछे का भूलते जाएं, फिर टेंडेंसी नॉर्मल रहती है कि सर एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे। अब आपके पास तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, नहीं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स। यस। तो इसलिए साथ में नोट्स जो भी आपको अच्छा लगता है, वैसे तो आपके स्टैंडर्ड के लिए सुब्रमण्यम साहब की बुक इज़ गुड इनफ, नहीं जी कहते थे हम उसे, कि जो आंसर चाहिए उतना ही लिमिटेड आंसर चाहिए। ठीक है, ओके देन कॉल इट अ डे, और एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? या ओके, वेलकम, टेक केयर। मर्करी बैरोमीटर तो आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज आउटडेटेड। वी स्टार्ट विद द थीरोइड। आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी हु हैज नॉट यूज्ड दिस। तो आपने ब्रिज वॉचेस की हैं, जो ऑल हैव बीन यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ देख के लिखते थे या कोरोला कॉपी कर देते? मैं देख के लिखते थे। तो सब देख के लिखते थे, तब तो बहुत अच्छा है। तो इसको रीडिंग इसकी यही लिखते थे या कोई एरर्स वगैरह भी लगाते थे या कुछ करेक्शंस लगाते थे? राइट, एरर लगाते थे। अच्छा, वेरी गुड। ब्रिज की हाइट का करेक्शन। एनीबॉडी ब्रीफली कोई बता सकता है क्या क्या एरर करेक्शन आप लगाते थे शिप पे? बाकी तो हम पढ़ेंगे। आपने रीडिंग नोट की और कैसे रीडिंग लेते थे? सिंपल, आई एम नॉट एग्जामिनिंग यू, बट लेट्स सी क्या करेक्ट प्रोसीजर क्या है। इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सिंपल है, आई विल शो यू लिटिल बिट ऑफ वीडियो ऑन दिस आल्सो, अंदर से काम कैसे करता है, टू सी योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अभी आप ऑफिसर ऑफ द वॉच हो, एंड ऑफ द वॉच नहीं, 7:45 पे आप लॉग बुक लिखनी शुरू करते थे, रीडिंग लेते थे, तो कैसे लेते थे और क्या क्या करेक्शन लगाते थे? जो करते थे, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम द बुक, क्या क्या आप करते थे? एनीबॉडी? करेक्ट, चोर वाला करेक्शन करके दे देता था, एक लिस्ट दे देता था। ठीक है, ये आपने जो रीडिंग देखी जैसे ये दिखा रहा है वही हमने नोटबुक में लिख दी, नहीं? करेक्शन अप्लाई करके लिखते हैं सर। क्या क्या करेक्शन लगाते थे आप? हाइट से ही लगाते हैं सर, विद एवरी 10 मीटर का था एक, देयर इज राइज एंड फॉल ऑफ 1 बार प्रेशर, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने करेक्शन लगा के रीडिंग लिखते थे। ओके, मिलीबार प्रेशर, बैलेस्ट कंडीशन और लोडेड कंडीशन के हिसाब से कि बैलेस्ट कंडीशंस में कितना है, अनलोडेड कंडीशन में कितना है। ओके ओके, वेरी गुड। सो थोड़ा सा आइडिया सी लेवल डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना सर, हाइट एवरी 10 मीटर का
4 मिलीबार जो है प्रेशर आपने फील कर। आप अपनी हाइट कैसे निकालते थे जहाँ से आप ब्रिज पे ये लगा होता था, तो आप हाइट हाइट कैसे ऑफ द ब्रिज फ्रॉम सी कैसे निकालते थे? ड्राफ्ट से और उससे कैलकुलेट करके। ओके, ठीक है, ड्राफ्ट है आपका, सपोज से 12 मीटर ड्राफ्ट है आपका। देखिए मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, टुमारो यू कैन बी अ सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर, यू गो एंड ब्रांड न्यू शिप, न्यू डिलीवरी फ्रॉम द यार्ड। अब वहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो चलो आपके पास किसी ने कुछ करके कुछ लिख के रखा हो, कोई टेबल रखा हो। सपोज वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉयज, ऑल इंडिया फर्स्ट आए हो, कंपनी बोलती है कि ठीक है अभी न्यू शिप इज कमिंग फ्रॉम द यार्ड, इसके लिए चलो आपको भेजते हैं। अब आपने रीडिंग लेनी है तो आप कैसे लोगे? सबसे पहले इन्होंने भी बोला है, काफ़ी करेक्ट बोला है यार। अब सारी हाइट आएगी कि ब्रिज की हाइट कैसे निकालूँ सी से? जी ग्रीन हाउस पोस्टर से देख के निकालेंगे सर। कैसे निकालेंगे समझा नहीं। ग्रीन हाउस पोस्टर सर, ग्रीन हाउस पोस्टर। व्हील हाउस पोस्टर में निकालेंगे आप इसकी हाइट ऑफ द ब्रिज। एनीबडी एल्स? बच्चे देखिए नो पॉइंट, अभी देखो आप कैडेटशिप करके आए हो, जो चीज़ मैंने वहाँ सीखी अगर मेरे को उसकी एप्लीकेशन ही नहीं पता फिर क्या फ़ायदा? दुनिया भर के आपने प्लान्स बनाई होंगी, उन प्लान को आंख बंद करके मैंने उसको बना दिया, कॉपी कर दिया, अब मेरे को प्रॉब्लम आएगी यार। अब थर्ड ऑफिसर आ गया, अभी किसको पूछूं? कैप्टन को पूछेगा तो कैप्टन पहले पूछेगा एज अ थर्ड ऑफिसर यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, शर्म आएगी। कैडेट तो पूछ सकते हो कि यार कुछ नहीं आता। तो बच्चे सिंपल, अगर आप प्लान्स में देखिए तो आपको हर डेक की हाइट दी होती है। आपकी जीए प्लान है उसमें हर डेक की हाइट है, इज़न्ट इट? मेन डेक से लेके एक बी डेक सी डेक सब डेक की हाइट है, कितने मीटर डेक की हाइट। मेन डेक तक आपको शिप की डेप्थ पता है, इज़न्ट इट? पर्टिकुलर्स तो आपने भरे होंगे। नॉर्मली सर शिप्स पर्टिकुलर में मिल जाता है लिखा हुआ। हाँ देखिए शिप्स पर्टिकुलर में तो बच्चों देखो डेप्थ देगा, बट आपको इंडिविजुअल डेक्स की हाइट नहीं देगा। इंडिविजुअल डेक्स हैं आपकी, मेन डेक्स है, फर्स्ट तो ship डेक, plan ई डेक, क्या आपकी जीए प्लान है। जीए प्लान इज अ सिंपल जनरल अरेंजमेंट प्लान। अगर आपने उसको एलिवे में देखा होता स्टडी, तो वो प्लान जो है टू द स्केल होती है, नहीं भी दी हुई आप अपना एक स्केल लीजिए, उससे मेजर कर सकते हैं यार एक डेक और दूसरी डेक के बीच में कितना डिस्टेंस है। 1:200 का स्केल होता है नॉर्मली उसका, इज़न्ट इट? तो कितना फास्ट है कि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। किसी चीज़ को, किसी फार्मूला को, किसी भी थ्योरी को पढ़ना और उसकी एप्लीकेशन मेरे को आनी चाहिए। प्लान मैंने बना दी बट मैंने समझा ही नहीं यार कि इसमें से अगर मेरे को कोई लेंथ ब्रेड चाहिए तो मैं कैसे उसकी बाई स्केल से कैसे निकाल। तो आपके पास अभी ईच डेक की हाइट है 2 मीटर है, 2.2, 2.3 जितनी भी है। मेन डेक से लेके ब्रिज तक की मैं सबकी एडअप कर देता हूँ। मेन डेक से कील तक मेरे को शिप की डेप्थ पता है। अब आपको ड्राफ्ट पता है, उसमें 12 मीटर ड्राफ्ट है, टोटल डेप्थ 20 मीटर, 8 मीटर फ्री बोर्ड हो गया, या 4 जितना भी फ्री बोर्ड प्लस टोटल हाइट आपने ऐड की तो ब्रिज डेक की आपके पास हाइट आ गई। और एक सिंपल देखिए, अब इस इंस्ट्रूमेंट को हम एरर लगा क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है उसका, वाई आई एम डूइंग इट, ये क्यूरियोसिटी आपके मन में आनी चाहिए। अच्छी, ये आपका एनीरॉयड बैरोमीटर है, हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। यही चीज़ अगर हम देखें, एनीरॉयड मींस बेसिकली पहले मर्करी बैरोमीटर होते थे, nowadays we have the aneroid barometer. Aneroid means without liquid. और इसकी अगर आप देखिए there is nothing, it's a very simple instrument, a sealed chamber made of very thin metal having a partial vacuum inside. अब ये देखिए आपका this is your sealed chamber, ये एक स्पेशल मेटल का बना होता है, वेरी थिन मेटल का, and it has got a partial vacuum inside. It is connected by a system of levers and springs to a pointer fitted over a circular graduated scale. इसमें भी आप देख लीजिए by levers, ये आपका it is connected with the levers and यहाँ पे एक spring है and it is connected to the pointer. इस इंस्ट्रूमेंट में है, बट ये लगता है जितना सिंपल है उतना है सिंपल बनाने को नहीं है, बट easy to understand. Yes, ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? Now since this has got a partial vacuum in that sealed chamber, so when the atmospheric pressure increases, the chamber gets compressed and the inward movement of its wall is transmitted mechanically to the pointer that registers a higher reading on the scale. तो ये तो इसका प्रिंसिपल तो बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, दैट इट इज मेड ऑफ द सील्ड चैम्बर ऑफ स्पेशल मैटर, वेरी लाइट मैटर, एंड इट गेट्स इफेक्टेड इमीडिएटली विद द प्रेशर। अब अभी हमने प्रेशर भी पढ़ लिया, यूनिट एरिया, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है, एंड दैट कीप्स चेंजिंग ऑल्सो, वो भी हमने देख लिया। इट इज डायनामिक, इट डजंट रिमेन सेम। When the atmospheric pressure decreases, the opposite happens. Tension of the chamber is assisted by a spring. Larger the chamber, greater the accuracy of the aneroid barometer. तो सिंपल है कि एक तो इसका स्केच बनाना, एक सिंपल स्केच, and make this 2-dimensional. No need to go for 3-dimensional. You can simply make this neat and labeled. यार क्या चीज़ है, वैक्यूम बॉक्स और ड्रम,
ब्रैकेट्स, स्प्रिंग्स जो भी है, एंड फाइनली इसकी जो मूवमेंट है, इस चैम्बर की जो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन है, इट इज कन्वेड बाय द स्प्रिंग्स टू द पॉइंटर इन सच अ वे दैट इट इज ग्रेजुएटेड। अब अगर आप इसकी एरर देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था कि यार यस बैरोमीटर तो रीड करता हूँ, आपके मन में आता है सम टाइम, एंड इट इज वेरी कॉमन टिल टुडे आई वाज सेलिंग, आई सी पीपल जस्ट गो एंड रीड द रीडिंग, वही रीडिंग बुक में लिख देते हैं। सम पीपल को वो कोई एक एरर लगा के लिख देता है, दूसरा जाता है वो 2 एरर लगा के लिख देता है। Captain comes on the bridge, he won't be able to make out। कुछ यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना। अब हम एरर लगाते क्यों? सबसे पहले तो देखते हैं इसकी एरर क्या क्या है। एरर्स ऑफ एनीरॉयड बीटन इज फर्स्ट द इंडेक्स एरर। This index error is very likely and is caused by imperfect elasticity of the vacuum chamber. This error is likely to change and should be obtained at least once in 3 months. This could be done by comparing with another aneroid barometer whose index error is known. ये है कि अभी जो मेरा ये जो स्केल है, हो सकता है इसमें ड्यू टू द काफ़ी यूज से इलास्टिसिटी, दिस वैक्यूम चैम्बर की इलास्टिसिटी से उसमें एरर आ गई है, लाइक अ स्केल एरर। यार 1 डिग्री या 1 मिलीबार या 2 मिलीबार ज़्यादा रीड कर रहा है या कम रीड कर रहा है ड्यू टू द इलास्टिसिटिक और द इम्परफेक्ट इलास्टिक इफेक्ट ऑफ द वैक्यूम चैम्बर। तो आपकी आ गई इंस्ट्रूमेंट एरर या इंडेक्स एरर जिसे आप कहते हैं। इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए सिर्फ एक ही है कि वी कैन कंपेयर। सो नॉर्मली इसका प्रोसीजर क्या था कि मेट्रोलॉजिकल पीपल, especially when most of the ships, like when we were working, the ships used to come to India. India में Indian meteorological department के people in Bombay and all that, Bombay या Calcutta, they will come on ship. They bring their precision aneroid barometer जो बहुत accurate होता है, उसके साथ वो आपके बैरोमीटर को कंपेयर करेंगे। इस लाइक कंपेयरिंग 2 वॉचेस। यहाँ भी आपकी घड़ी में कितना टाइम है और मेरी घड़ी में कितना टाइम है, यार इतने मिनट इतने सेकंड फास्ट है या स्लो है, वो आपको एक स्लिप दे देगा, सर्टिफिकेट पर्ची जैसी दे देगा लिख के, वो हम इस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा देते हैं। सो दैट व्हेन यू रीड द रीडिंग, सपोज इट इज रीडिंग 1013 एंड इंडेक्स एरर इज +1, दैट मीन्स आपने 1 मिलीबार ऐड करना। सो इट डजंट मेक दिस इंडेक्स एरर हैज गॉट नो मीनिंग अबाउट हाइट और टेम्परेचर और एनीथिंग, किसी चीज़ का भी उसको नहीं है। ये सिर्फ एक किस्म की स्केल एरर है। तो आपने उसका इंडेक्स एरर लगा के +1 या -1 या +2 जितनी भी दी है कि वो एरर आपने उसको कर दी। इस एरर को ठीक भी कर सकते, अगर बहुत ज़्यादा एरर आ जाए देन यू टू सेंड इट टू द फैक्ट्री। आप नहीं कर सकते, नॉट टू टच दिस, अदरवाइज इसके पीछे एक स्क्रू होता है, उसको खोल के यू कैन एडजस्ट। नॉर्मली वी अप्लाई दिस एरर, वी डोंट करेक्ट, वी जस्ट अप्लाई दिस एरर। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। सेकंड अभी आपकी हाइट करेक्शन। हाइट करेक्शन हम क्यों लगाते हैं? सिंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर सी लेवल फॉल्स एट अ रेट ऑफ 1 मिलीबार फॉर एवरी 10 मीटर्स। अभी हमने पढ़ा भी था कि जैसे जैसे आपकी हाइट, एज यू स्टार्ट going above the sea level, तो barometric pressure starts decreasing। वो रेट भी हमने देख लिया था, 115 मिलीबार फॉर 1 किलोमीटर, इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिलीबार फॉर एवरी 10 मीटर इंक्रीज ऑफ हाइट। अब एक यूनिफॉर्मिटी के लिए कि यस वी शुड मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। अगर सारे शिप्स, ऑल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एवरीवन जो भी हैं, दोज पीपल दे कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो ये भी ठीक है। अब मैं अपने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ब्रिज पे पढ़ रहा हूँ, विच में भी 15-20 मीटर अबव द सी लेवल, 30 मीटर अबव द सी लेवल। ना दिस विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, जैसे आपने कहा बैलास्ट एंड लोडेड कंडीशन, एंड उसके अकॉर्डिंगली मेरी जितनी भी हाइट ऑफ आई है मैं उतनी उसमें एरर लगाता हूँ। क्यों? कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग द प्रेशर जो मैं रीड कर रहा हूँ वो हाइट पे रीड कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दैट प्रेशर टू सी लेवल। इसलिए क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाएगा। तो अब जो मैं अपनी वो कर रहा हूँ, द प्रेशर विच आई एम रीडिंग दैट इज बेसिकली लेस। उसी प्रेशर को अगर मैंने अपने सी लेवल पे देखना है, सो आई हैव टू ऐड दैट। सी लेवल पे प्रेशर ज़्यादा होगा, हाइट पे प्रेशर कम होगा। इसके लिए देयर इज नथिंग टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज ऑलवेज एडिटिव। ये हमेशा। सो करेक्शन कैसे निकालनी है? सिंपल, हाइट अबव द सी लेवल डिवाइड बाय 10। Why? Because every 10 meters the barometer falls by about 1 millibar। अब आपने 2 करेक्शन है कि इंडेक्स एरर है तो लगा दो, नहीं है तो 0, प्लस हाइट करेक्शन मैं उसको कैलकुलेट करूंगा। हाइट ऑफ हाइट डिवाइड मीटर की अगर आपकी हाइट है डिवाइड बाय 10, 3 मिलीबार, तो वी एडेड 1013 प्रेशर रीड हो रहा है, दैट मीन सी लेवल पे 1016। आंसर में ये आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उससे आपका आंसर और भी अच्छा लगता है। तो जब आपने अपना आंसर लिखना है, आपने ऐसे लगना है कि जैसे आप एग्जामिनर को पढ़ा रहे हैं। ये दे दिया, नीचे एग्जांपल दे दिया, लाइक इफ आई एम रीडिंग द प्रेशर एट द ब्रिज लेवल इज सो एंड सो, हाइट ऑफ आई सो एंड सो, दिस इज वेरी क्लियर।
यही चीज़ आप प्रैक्टिकली एट सी भी आपने करनी। Precaution when using aneroid barometer, tap the face of the instrument lightly to release any sticking of the levers. So इसको slowly आपने टैप करना है, just once enough, not that कि जोर से मारा और उसका कांच ही तोड़ दिया। तो idea is that sometimes the levers get stuck and all that, so वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। That's all the precaution is there. Advantage is robust, compact, कोई maintenance नहीं है, changes of pressure easily detectable. For this purpose, a fixed pointer is provided attached to the glass face of the instrument. अब इसके ऊपर एक आपने देखा होगा एक पॉइंटर जैसा लगाया होता है विच इज आउटसाइड ऑन द ग्लास, जिसको इस नॉब से हिला घुमा सकते हैं। तो ये नॉब से आप इसको पॉइंटर को आप घुमा के जहाँ भी आपका प्रेशर रीडिंग है, अगर दिस इज द पॉइंटर, आप इसको प्रेशर पे यहाँ पे इसके ऊपर ले आइए। इसका क्या पर्पस है, इस पॉइंटर का जो हम अपना फिजिकली हम इसको घुमा के नॉब से लेके प्रेशर के ऊपर लगाते हैं, इसका क्या पर्पस? अगर नीचे मूव भी हो रहा है तो वो फिक्स हो जाएगा। इसका पर्पस है अभी जैसे मैंने 8 o'clock 4 to 8 आप वॉच amount of rise and fall we can यस तो मैंने ये पॉइंटर जो था अपना, ये जो मैनुअल पॉइंटर था, सपोज ये प्रेशर अंदर का पॉइंटर है, इसके ऊपर मैंने इसको अलाइन कर दिया। अब नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद जो दूसरा ऑफिसर देखेगा या कैप्टन साहब अभी आते हैं, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उनको पता लग जाएगा, बिकॉज ये पॉइंटर तो फिक्स है, ये तो मैनुअल पॉइंटर है, ये तो नहीं घूमेगा। प्रेशर चेंज होगा तो अंदर का जो पॉइंटर है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो उससे पता लगेगा अगर ये कम हुआ है कि यार लास्ट प्रेशर रीडिंग वाज हियर, अब अंदर का पॉइंटर यहाँ चला गया, दैट मीन्स प्रेशर इज डिक्रीज्ड या इंक्रीज। दैट इज द होल आइडिया ऑफ ये जो आउटसाइड आपका जिसे कहते हैं कि एक पॉइंटर लगाया है उसको देखने के लिए। फिक्स पॉइंटर जो है इज अलाइंड विद द डायल पॉइंटर टेकिंग केयर टू अवॉइड एरर ऑफ पैरेलक्स। दिस इज जस्ट बेसिकली इवन व्हेन यू लुक एट इट, आप भी अगर 1 घंटे के बाद अगर देखते हो, जैसे आप वॉच पे आए हो, आपने देखा बैरोमीटर देखा कि हाँ यार अभी प्रेशर जो है पॉइंटर उसके ऊपर लगा हुआ है, 1 घंटे के बाद हो सकता है प्रेशर में फॉल, देन यू कैन ऑल्सो मेक आउट द प्रेशर इज फॉलिंग। बैरोमेट्रिक टेंडेंसी वो भी हमने पढ़ा था। बैरोमेट्रिक टेंडेंसी क्या होता है, वेयर ग्राफ इज नॉट वर्किंग और इट इज नॉट प्रोवाइडेड, barometric tendency can easily be obtained by aneroid barometer. Align the fixed pointer to the dial pointer every 3 hours starting from UTC and note the change. सिंपल, कोई आपको पूछे कि भी इस पॉइंटर का क्या आइडिया कैसा, जस्ट टू नो द बैरोमेट्रिक टेंडेंसी। और टेक्निकल हो गया, मोमेंट टू से बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, तो उसको पता होना चाहिए व्हाट इज बैरोमेट्रिक टेंडेंसी, कि इस फिक्स पॉइंटर से आई कैन मेक आउट द बैरोमेट्रिक टेंडेंसी बिकॉज एवरी 3 hours आई एम एडजस्टिंग दिस पॉइंट। ओके, क्लियर? So these are the things. So this is compact, robust, accurate aneroid barometer that has no, ये तो आ गया precision पे, तो ये तो था आपका basically aneroid barometer. So let me see if I can show you. I have a little video, अंदर से आपको इसकी working भी दिख जाएगी कैसे work करता है। I hope if I can show you इसकी how do we get the sound के लिए कुछ करना पड़ता था ना, do we go for the video की sound के लिए। So let's see if you are, can you hear the sound? Sound तो कैन No, sir. साउंड नहीं है सर। कुछ सेटिंग है यहाँ पे। यस, अरे सर आप अपनी पढ़ा रहे थे, इससे शायद बढ़ जाएगा। हाउ डू वी गेट द साउंड ऑन दिस? डिवाइस सेटिंग में जाके मिल जाना चाहिए सर। हाँ जी, सेटिंग में आ नहीं रहा है। डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन है ना सर उसमें, हाँ, उसी में जा रहा हूँ, डिवाइस सेटिंग में देख रहा हूँ। डिवाइस सेटिंग में आना चाहिए, स्पीकर्स, ऑडियो, वॉइस सप्रेशन तो है, कैमरा, साउंड तो यहाँ दिखा रहा है आपको, नहीं स्पीकर भी दिखा रहा है, आपको साउंड क्यों नहीं सुन रही? चल ऐसे ही देखते हैं, फिर ऐसे ही देखो। लेट्स सी इफ यू कैन मेक आउट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ बेसिकली you have seen it works. Little bit of idea inside skin, the inside mechanism, how that thing works. It's a simple instrument, very frequently repeated in your exams also. Much to remember. Only thing is, please be very careful when you are making. So try practicing this, making a diagram. ये वाला कोई भी जो भी आपको बुक में भी ये डायग्राम है, whichever you feel which is convenient, easy for you to make, please उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए and write all these things. What is the construction, what is the principle, how it works, and then is your precision aneroid barometer. Now precision aneroid barometer again, compact, robust, accurate aneroid barometer. Now ये आपके शिप पे नहीं यूज होता, this is basically the meteorological people, they use this because उनको ज़्यादा accuracy चाहिए, so they use this. So इसके अंदर भी क्या, it has a micrometer arrangement for reading up to 0.1 millibar. So this is what it is basically. If you see, ये instrument looks like this, expensive one. So normally meteorological people, they bring this instrument and they compare the ships one. Anybody faced, कभी anybody has done this comparison? किसी के
सामने कोई लेके आया शिप पे। चलो ये तो वही है, ऑफ कोर्स इफ यू आर कमिंग टू इंडियन कोस्ट स्पेशली these two ports, these people come, and that also on the request, if the captain requests to the agent to send the meteorological department people, they come, they don't charge anything, they just come free of cost and they update your basically the barometer. So इसकी कंस्ट्रक्शन भी सेम, वैक्यूम कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 3 मेटल चैम्बर्स। यहाँ पे अभी उसने मेटल चैम्बर्स एक की बजाय 3 कर दिया, अटैच्ड टुगेदर लाइक अ बेलोज ऑफ एन अकॉर्डियन। शॉर्टर एंड ऑफ द पिवटेड लेवल रेस्ट लाइटली ऑन द टॉप ऑफ वैक्यूम कैप्सूल विद द हेल्प ऑफ अ हेयर स्प्रिंग। अगर इसकी आप पिक्चर देखिए तो इट लुक्स वेरी सिंपल। These are the 3 chambers and basically it has got a battery operated, and you got this micrometer screw. Basically you touch this and then it makes a connection and it shows when the connection is made. and अगर आप इसको पीछे कर देते हो this pointer को, and then it basically disconnects. Dual drive is there to see the reading. The increase or decrease of atmospheric pressure causes the top of capsule to move in and out and the longer end of the lever to move up and down. So this movement can be measured by a micrometer arrangement with a digital display. It's like an electronic eye showing the reading in millibar and decimal of a millibar. So to obtain correct reading, the bottom of the micrometer arrangement should just touch the bottom of the end of the lever, so that we adjust with the small knob. Assist in achieving this, a small cathode ray tube CRT and a small battery is provided. So read करने के लिए a continuous line on the magic eye indicates contact and a broken line indicates break in contact. जैसे हम उसका contact बनाएंगे, you see a continuous line, and then you can see the reading. Save the life of battery, a spring loaded switch is provided. आप उसको ऑन कीजिए तब ओनली आपकी वो जो इलेक्ट्रॉनिक आई CRT टाइप है छोटी सी, वो ही ऑन होगी। जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे इट विल गेट ऑफ, ताकि बाई मिस्टेक अगर वो ऑन रह गया तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी। So when the switch is impressed, the magic eye is energized. When the finger pressure on the switch is released, so it becomes automatically. तो ये तो आपके कोर्स में, this is just for reading for information. आने को एग्जाम में आ भी सकता है। मोस्टली आपको एनीरॉइड है which we use because this instrument we don't use on the ship. Expensive रहता है. Now reading the precession aneroid barometer, depress the switch, hold it there, increase the reading by slowly rotating the micrometer head until the magic eye shows a continuous line. जैसे वो कॉन्टैक्ट बनाएगा नीचे आपके चैम्बर्स के साथ, वहाँ पे continuous line आपकी मैजिक आई में आनी शुरू हो जाएगी. Decreasing the reading very slowly until the magic eye just shows a broken line. So release the switch, read off the pressure in millibar and decimal of a millibar. इसमें भी वही corrections है, index, height correction, minor fluctuation due to gust to make the instrument insensitive to these sudden changes. So rolling pitching, the outer casing is airtight except for one small air inlet that is fitted with a damping device. Graph. Now this is another type of, basically इसके अंदर भी एनीरॉइड बैरोमीटर ही है, but it is attached with the chart. अब आपके पास है कि every hour you have to keep noting down the reading or every 4 hours. Barograph is a very good instrument जो आपको basically continuous record देता है. It looks like this. Most of the time it is there on the ship, but nobody takes care, it doesn't work. फिर उठा के हम इसको कहीं ना कहीं नीचे ड्रॉर में डाल देते हैं कहीं पे, इजी काम तो कर नहीं रहा, फिर सामने क्यों रखना. अदरवाइज नॉर्मली इट इज़ प्रोवाइडेड. ये भी इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव बट इट गिव्स बेसिकली अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड. इसमें भी वही प्रेशर चेंजेस हैं. यहाँ पे इसकी एक छोटी सी निब होती है, यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक एंड देन ये जो आर्म है इसकी, दिस कीप्स ऑन, ये ड्रम, इसके ऊपर ये पेपर लगा जिसे कहते हैं बैरोग्राम. सो दिस ड्रम कीप्स रोटेटिंग विद द क्लॉक मैकेनिज्म. एंड यहाँ पे अलाइन द टाइम, जिस टाइम आपने इसको सेट किया है. सो इट इज़ बेसिकली 8 डेज का ये पेपर होता है. एवरी वीक वी चेंज दिस पेपर. इसको पर्टिकुलर टाइम के साथ अलाइन करके आप अपनी पोजीशन भी लिख सकते हो यहाँ पे. एंड देन द क्लॉक कीप्स ऑन मूविंग, दिस ड्रम कीप्स ऑन मूविंग, एंड इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा ट्रेस आता है. व्हेन यू हैव द ट्रेस, so by looking it you can make out whether it is, see, look at this. So this type of trace basically you get on the barograph. यहाँ पे आपके आवर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपकी डेट दी हुई है, सैटरडे, संडे. So every hour and time, every day and time you can make out कि this is a barometric tendency कि यहाँ से pressure was falling, then it is rising, again falling, and
यहाँ पे कितना प्रेशर आ गया 980. So these are your pressure readings on this scale. The scale, this is a barometric pressure, this is your time of the hour, date, time. You can any time make out कि 4th June को 10 o'clock what was the pressure reading. And यहाँ से ये देख भी सकते हो. Yes, in case of TRS and all that, you see this steep fall in the pressure like this. The pressure decreases close to say from 1000 to 20 millibar. The pressure has come down, and then sudden increase, and then this. So ये barograph जो है, of course इसकी maintenance थोड़ी सी यही है. We have to keep this pen, keep this ink, plus जो इसका है basically उसको clean रखना so that it keeps printing that. But अगर नहीं किया फिर वो ink जम जाती है, then it doesn't. So barograph basically is an aneroid barometer that gives a continuous record of pressure on the paper chart. The chart with continuous barograph trace is called barogram. जो पेपर है इसको हम barogram कहते हैं because it is all इसके ऊपर correction सारी की सारी time is like a graph. So the barograph is so adjusted as to allow for index error and height correction. वो आप इसकी पहले से adjust कर देते हो, so it gives you the correct reading for the sea level pressure. For climatic record purposes, the barograph is always set to UTC. So हम यहाँ पे time जैसे मैंने शुरू किया अपनी क्लॉक के साथ, शिप्स टाइम के साथ, UTC के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर दीजिए. वॉयस नंबर फ्रॉम टू, एंड ये पेपर फिर हम बाद में वी गिव इट टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये पूरी की पूरी वॉइस के जो ये पेपर है इसको आप खोल के यू गिव इट टू द मेट्रोलॉजिकल पीपल. फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी देते थे, वेरी गुड दैट यू आर मेंटेनिंग दिस रिकॉर्ड. So this is how the barograph का उसने ट्रेस दिखाया during the 2005. 882 millibar pressure, 70 rather. The lowest recorded sea level pressure 870 millibar typhoon tip in 1979. ये देखिए सारा का सारा. So it is a very good record that how much pressure during the voyage you experienced. Construction इसकी chamber consists of series of metal boxes arranged vertically resembling the bellows of an accordion. Same thing. Changes of atmospheric pressure causes the top of the chamber to ascend or descend. Same story, same principle that due to the atmospheric pressure either the chamber gets compressed or it gets expanded, and this movement is conveyed by lever system to a stylus that moves up and down on the chart. Fixed on the cylindrical drum that rotates at a uniform speed of 1 rotation per week. And 8 days के लिए आपके पास होता है. The rotation is affected by an 8-day clock mechanism. The clock is therefore wound whenever the chart is changed. So every week you change. एक हफ्ते आराम से चलेगा, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है. In modern barographs, vacuum chamber is immersed in a brass cylinder of oil that is just to keep the otherwise keep your vibration के साथ, ताकि जो ट्रेस है वो एक steady trace रहे. As the chamber expands, oil is forced out of the top of cylinder through small holes, and this dampens the movement of stylus. So basically इसको immerse करना, it is just a dampening effect and prevents small vibrations and gusts from making unwanted squiggles on the traces without loss of accuracy of the barograph. Yeah, just give me a minute. ठीक है. So this is your basically barograph. इसके ऊपर भी questions आपके पास पेपर्स में you will have question on this barograph. तो इसकी भी अगर आपकी sketch जो है आपने whatever simplest way, 3-dimensional of course you cannot make, but आपकी इसकी construction principle is almost same. So इसके लिए precautions भी ज़्यादा नहीं, वही precautions है कि yes you have to keep winding the clock every week, apply the errors, you know the index error, and you know the height correction also you can apply, so it gives you the sea level pressure on the chart on the barogram. So that is most important. So characteristics of barometric tendency, term used in weather codes to denote the shape of trace of the barograph during 3 hours preceding the time of observation. We know that. So जब हम weather coding decoding करेंगे, so then also we know आपके पास एक ग्रुप है कोड ग्रुप 5 PPP, जहाँ पे it stands for the characteristic of barometric tendency. What is barometric tendency basically? Any idea? Pressure in 3 hours. Yeah, it's the rate of change of pressure. At what rate the pressure is changing. So we see, we compare with last 3 hours. Now the pressure has fallen by 2 millibar. That means the barometric tendency is 2 millibars. The moment you say 2 millibars means it has fallen in last 3 hours by 2 millibars. यही चीज़ हम जब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे वहाँ पे भी ये barometric tendency हमें आती रहेगी. Completed barographs, जो आपके पेपर हैं, चार्ट्स हैं, वो completed हैं. Each barograph is completed. The entries on the back, lat, long, date, comparison with barometer should be filled up, and barograph
or the barogram rather, handed over along with the completed weather logs to the physical office of the home port. इसका ये tradition भी खत्म हो गई है because of satellites and all that. Normally third officer used to be in charge of all meteorological instruments. फिर सारा बना के used to send the weather reports and give it to the meteorological people, and then they used to be same उसी report पे उसी को compile करके they used to send the reports back to the ship. But today due to all this technology, satellite system, so they are not dependent on the ship's reports. Satellite can track इसका weekly schedule, paragraph का, renew the chart, wind the clockwork mechanism, replenish ink, compare and adjust reading to eliminate index error and height correction, wash the pen at least once every month ताकि ink जो है वो dry होके उसको रोक ना दे. Advantages: gives continuous record of pressure that can be matched by a barometer if the latter is read and recorded every half an hour. तो ये तो आपके थे बैरोमीटर के इक्विपमेंट्स, बैरोमीटर, एनुलॉइड बैरोमीटर, प्रिसेशन बैरोमीटर एंड बैरोग्राफ, जिसमें सेम प्रिंसिपली यूज्ड, ओनली कंस्ट्रक्शन एंड other paraphernalia is little bit different. Hygrometer, I think most of you must have used this hygrometer also. Bridge wings पे लगे होते हैं दोनों तरफ, तो आपने भी इसकी भी रीडिंग ली होगी. आई एम वेरी श्योर. ये कॉपी नहीं किया तो इसका भी पर्पस, अब हर काम का कोई ना कोई पर्पस. अब आपने थोड़ा बहुत सेटिंग के बारे में पढ़ा, isn't it? वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि हाउ डू वी कैलकुलेट द ह्यूमिडिटी, हाउ डू वी come to know what is the how much the relative humidity in the air and what is the dew point of the air. So basically उस चीज़ को निकालने के लिए we use this hygrometer या psychrometer भी है. So this is the instrument for obtaining relative humidity and dew point of the air. Type used on board is called Mason's hygrometer or wet and dry bulb hygrometer. ये भी एक बहुत simple instrument है. I think on most of the ships you must have seen Stevenson screen. ये जो लकड़ी का बॉक्स है इसे कहते हैं Stevenson screen. इसके अंदर होल्स होते हैं बेसिकली जस्ट टू प्रोटेक्ट कि आपका स्प्रे या डायरेक्ट सनलाइट जो है इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए. अंदर में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इट इज सेम, बेसिकली 2 थर्मामीटर्स, आइडेंटिकल थर्मामीटर्स, यानी एक का स्केल कुछ और दूसरे का स्केल कुछ और. वन हैज गॉट अ मुस्लिन क्लॉथ विच इज डिप्ड इनटू द, ये प्लास्टिक का छोटा सा एक रिजर्वायर रहता है जिसमें यू फिल अप अ डिस्टिल्ड वाटर. ये जो डिस्टिल्ड वाटर है, ये जो आपका कॉटन क्लॉथ है, विक जिसे कहते हैं, इसके ऊपर कैपिलरी एक्शन से ये पानी जाएगा और इसको ये गीला कर दें. एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है विच इज़ ब्लोइंग ओवर इट, सो आपके दोनों में टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा. ये आपको ड्राई बल्ब कहते हैं इसे, और इसे वेट बल्ब कहते हैं. तो लेट्स सी इसका क्या प्रिंसिपल क्या है एंड हाउ द सिस्टम वर्क्स. नाउ दिस हाइग्रोमीटर, Mason's hygrometer consists of 2 thermometers mounted side by side in a Stevenson screen. You see that 2 thermometers mounted side by side, and दोनों के ऊपर स्केल भी है. One is dry bulb thermometer, the other is a wet bulb thermometer. Cambric or muslin is, which is a cotton cloth basically, is wrapped around the bulb of wet bulb and is kept moist by means of piece of cotton wick leading to the container of a distilled water. तो ये आपने थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर डालना है जिसमें सॉल्ट ना हो या ज़्यादा क्लोराइड्स ना हो, जिसके करके उसकी रीडिंग आपको ठीक नहीं आएगी. So how the system works, description क्या है इसकी. Evaporation of water requires heat. This is taken from around the wet bulb, isn't it? So आपकी जो एयर है, जैसे आपने अपने कपड़े भी इवन सुखाने को डालते हो तो the water evaporates. So same way यहाँ पे भी when the air strike these bulbs, so वहाँ पे भी evaporation will take place. Now ये भी हमने पढ़ा था, I think 12th में पढ़ा होगा. The evaporation causes cooling. So now he says that it requires heat. This is taken from around the wet bulb, which unless the air is saturated shows a low reading than the dry bulb. Why? Because as the evaporation causes cooling, as the evaporation takes place, it will cool the wet bulb. So आपको उसका जो depression, उसका जो reading है, that will be less than the dry bulb. इसमें आपने सिर्फ एक प्रिकॉशन है, इंश्योर नो फिंगर टचेस द मुस्लिन, बिकॉज आपके हाथ में हो सकता है ऑयल लगा हो, कुछ भी हो, तो ऑयल फ्रॉम द फिंगर वुड प्रिवेंट द मुस्लिन फ्रॉम एक्टिंग लाइक अ कैपिलरी ट्यूब एंड ड्राइंग द वाटर. आपको ड्राई नहीं होना चाहिए कपड़ा, इट शुड रिमेन लिटिल बिट वेट. ज़्यादा वेट में नहीं, स्लाइटली वेट. द स्क्रीन एंड थर्मामीटर शुड बी हंग अप ऑन द विंडवर्ड अवे फ्रॉम द लोकल ड्राफ्ट्स ऑफ वार्म एयर करंट्स एंड अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट. सो दीज आर द प्रिकॉशंस. इसका प्रिंसिपल क्या है काम वर्किंग का, चाहे हाइग्रोमीटर ले लो चाहे साइक्रोमीटर, बोथ. वी हैव ड्रिलिंग साइक्रोमीटर ऑल्सो, उसका प्रिंसिपल भी सेम है. बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन द मुस्लिन ऑलवेज
द मुस्लिन क्लॉथ ऑलवेज रिमेन्स डैम्प, थोड़ा सा वेट रहेगा. So water is drawn upwards from the bottle through the strands of wick. Now if the atmosphere is dry, humidity कम है, rapid evaporation takes place, isn't it? जैसे आजकल अगर आप कपड़े धो के बाहर डालते हो immediately सूख जाते हैं. After maybe month or two when the monsoons come, कपड़े डालिए सूखेंगे ही नहीं. Why? Because the air is saturated, lot of water vapor is there. उसके साथ आपके कपड़े सूखेंगे नहीं. Same thing is taking place here. When the atmosphere is dry, rapid evaporation takes place from the muslin. And since evaporation causes cooling, the wet bulb thermometer will show lower reading than the dry bulb and vice versa. So इससे हमें जितनी उसका डिप्रेशन, जितना उसका डिफरेंस ज़्यादा होगा that means एयर उतनी ड्राई है, एंड जितना डिफरेंस कम होगा that means एयर उतनी ह्यूमिड है. Isn't it? So अगर आपका डिप्रेशन जस्ट 1 डिग्री, हाफ अ डिग्री है या सेम हो गया that means 100% saturation, immediately it is. वहाँ से हमें क्या पता लगता है कि if there is lot of humidity, रेन में आप देखना इन दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम आ जाता है. दैट मीन्स इफ द डिफरेंस इन बोथ द थर्मामीटर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और लेस 100% ह्यूमिडिटी आपकी, एंड देयर इज 100% ह्यूमिडिटी, चांसेस ऑफ रेन आर देयर. सो सिंपल यू कैन मेक आउट. इफ द डिफरेंस इज टू मच देन यू नो इट्स अ ड्राई एयर. So in other words, the difference between readings of the wet bulb, dry bulb gives an indication of relative humidity. The greater the difference, lower the relative humidity and vice versa. फिर आपकी बुक्स में ये चार्ट दिया हुआ है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए. यू सी द ड्राई बल्ब टेम्परेचर हियर एंड देन you see the difference between the wet bulb and dry bulb. If 0 difference, 1 difference, 2, 3, then you can see what is the dew point. अगर मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री है, difference in temperature or difference in this air, both the thermometers is 1 degree. So 20 के अगेंस्ट हम देखते हैं तो 19 डिग्री, ड्यू पॉइंट इज 19 डिग्री. सिमिलरली यू कैन मेक आउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो. कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 है, डिफरेंस इज 2, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 81% और अदर से या 82% अगेंस्ट 20 डिग्री. सो सिंपल. तो देखिए ड्यू पॉइंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए कितना सिंपल इंस्ट्रूमेंट. प्रिकॉशंस, Stevenson screen should be on the windward side in open air away from the artificial source of heat and artificially heated drafts of air. इसीलिए दोनों तरफ आपके ब्रिज विंग पे लगाया होता है. Should be about 1.5 meter above the deck for convenience of the observer, ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े हाई लेवल पे. Sunlight falling on the screen permitted but not directly on the thermometer. Precautions when using, it should be far away from metal bulkheads which may cause the heat radiation that can affect the reading. And muslin cloth जो है should be clean, free of dust or salt particles carried by spray. If not, wet bulb thermometer will give a higher than the correct reading. ये जो छोटा सा आपने कपड़ा बांधा उसके ऊपर या विक जो है, it should be changed once in a week. जो भी ऑफिसर आपके एज पर कंपनी इंचार्ज है, नॉर्मली थर्ड ऑफिसर इज टू बी इंचार्ज. सो मेक श्योर यू कीप दिस थिंग क्लीन्ड अप. पानी का जो रिजर्वायर है साफ होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए, एंड दिस क्लॉथ इज ऑल्सो क्लीन. There should not be too much of water or too little, that will cause the wet bulb readings to show higher than the correct one. Water bottle should be washed and distilled water. Of course, आजकल आपके शिप पे distilled water ही है because of the fresh water generators. तो जो टैप में पानी आता है, I think this is all distilled water. The bulb should be clean and clear of drops of condensed water. वो भी नहीं होना चाहिए. So these are basically precautions, construction, principle and sketch. इतनी चीज़ें बना ली, 20 में से आराम से 16, 17, 18 मार्क्स आपको मिल सकते हैं if you write all these things. What is the principle, what is the construction, and when using what all precautions I will take. Clear? Any doubts on these instruments? Anybody? हाइग्रोमीटर क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे और इसका पर्पस क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू पॉइंट एंड हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ये आगे चल के हमारी कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा. आपको ड्राई बल्ब, वेट बल्ब का टेम्परेचर दिया है, सो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द ड्यू पॉइंट. हो जाएगा कि एनी डाउट्स? क्या कहते हो? इफ यू आर देयर और नॉट? हो जाएगा सर. सर हो जाएगा सर. चलो ठीक है, इसको पढ़िए. वैसे तो सिंपल है, सिर्फ स्केच की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वेट एंड ड्राई बल्ब, अब ये भी उसने थोड़ा सा एक्सेप्शनल दे दिया कि एक्सेप्शनल केसेस में वेट बल्ब रीडिंग हायर देन द ड्राई बल्ब रीडिंग कैन हैपन ओनली insufficient evaporation taking place from the wet bulb due to dust, salt or other impurities. Sometime अगर आप देखने को जाते हो तो आपको ऐसा दिखे, so don't get worried, just check up that everything is okay. Insufficient time interval allowed after shifting the screen or addition of water or renewal of the cloth. So आपने जब चेंज किया तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए
otherwise sometime reading can be higher. Difference in sensitivity of thermometer, यानी कि एक थर्मामीटर टूटा, आपने एक ही मंगाया, वो दूसरे ब्रांड का आया, वो लगा दिया, नो. So by chance tomorrow if something happen, it breaks, so ask the company to supply you both, 2 thermometers, don't ask for one, because it's very difficult to explain कौन सा वाला आपके पास है, वो मिले ना मिले. So simple, ask for 2, replace both of them. Faulty or broken thermometers, then also possible that your wet bulb reading, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपकी wet bulb reading ड्राई से ज़्यादा है तो क्या रीज़न है, सर ये रीज़न हो सकते हैं, आई विल चेक. आपका रीलिंग साइक्रोमीटर, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दिस इज ऑल्सो वेरी हैंडी. ये हैंडल है, इसके ऊपर भी आप एक छोटा सा कपड़ा बांध के एक ड्रॉप ऑफ पानी डालना है एंड जस्ट टर्न दिस इन ओपन एयर, इवन इन द ब्रिज विंग और कहीं पे भी आपको अगर उसकी ह्यूमिडिटी देखनी है. ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. एंड इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी, ये ड्राई बल्ब है, ये वेट बल्ब, यू कैन टेक द this thing reading even inside the hold also. The frame has 2 identical thermometers. One is thin muslin cloth tied firmly around the bulb, and when required, frame is held horizontal using a dropper. A drop of distilled water is made to fall on the muslin, and the frame is rilled, means usko just rotate in open air at least for 2 minutes. Advantage is simple, very quick reading, very accurate. Relative wind speed should be around 7 knots to achieve best results. का रीलिंग है, ये क्वेश्चन भी कॉमन है. साइक्रोमीटर, रीलिंग साइक्रोमीटर, जब आपने रीलिंग साइक्रोमीटर है, प्लीज रिपीट दैट सेम प्रिंसिपल, दैट दिस आल्सो, यानी कि थोड़ा सा ही लिखना है, इसको स्केच बनाना है. दिस इज बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन है. इट इक्विप्ड विद दीज थिंग. ये ऐसा है जो हमने हाइग्रोमीटर का प्रिंसिपल पढ़ा, उसको भी आपने यू कैन राइट ऑन दिस. ये तो रहा आपका इंस्ट्रूमेंट्स का. अब एक रह गया हमारा एनीमोमीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. सो वो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, जब मिलेंगे. इसके मैं नोट्स भेज दूंगा, उसके भी भेज दूंगा, एनीमोमीटर के भी नोट्स इसके साथ भेज दूंगा. यू कैन रीड, इट्स वेरी सिंपल. यू हैव बीन यूजिंग एनीमोमीटर्स द फ्रिज, तो अंदर प्रिंसिपल क्या है, उसका कैसे काम करता है, सो यू कैन गो थ्रू. नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक.